Hello everyone. Today's topic is third week of development, that is formation of trilaminar germ disc. Most important characteristic event which occurs during third week is termed as gastrulation. What is gastrulation? It is a process in which three germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm are formed. This process is termed as gastrulation. Gastrulation begins with the formation of primitive streak. Gastrulation begins with the formation of primitive streak, then formation of primitive node, bugopharyngeal membrane, oropharyngeal membrane or cloacal membrane. In second week we have bilaminar disc. This is bilaminar disc, epiblast and hypoblast. This is an image. Trophoblastic cells. This is embryo having bilaminar germ disc and amniotic and yolk sac cavity. Then if we only consider about the embryo section, not on trophoblast, on embryo, in embryo bilaminar germ disc formed during second week, and towards the epiblast amniotic sac and towards the yolk sac hypoblastic layer. If we cut a section through the amniotic sac, then this image will be same. This is the image. If we see from the amniotic sac, अगर हम ऊपर से देखेंगे, amniotic sac का जो पोर्शन है उसको कट किया, amniotic sac के थ्रू अगर हम देखेंगे, जो एपीब्लास्ट की जो लेयर दिखाई देगी उसके अंदर हमें दिखाई देगा bucopharyngeal membrane. This is bucopharyngeal membrane and primitive streak. This is the primitive streak. Primitive streak vaguely defined before 15 to 16 day, but after 16th day embryo it is clearly visible as a narrow groove with slightly bulging regions on each side. It's a narrow groove with slightly bulging regions, and cranial portion of the primitive streak have a pit, that is termed as primitive pit. Now primitive streak. What is primitive streak? It is a linear band of thickened epiblastic cells. Appear first at caudal end of embryo and then it grows cranially. Primitive streak. Streak means just a line. Streak. Start from caudal end and it grows cranially, पर पूरी लेंथ में नहीं जाएगा, थोड़े से एरिया में जाएगा. इनिशिएट होता है कॉर्डली और कंप्लीटली फॉर्म ग्रो करेगा टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड. इसके क्रेनियल एंड पे एक पिट प्रेजेंट होगी, जिसे हम कहेंगे प्रिमिटिव पिट. दिस इज diagram showing cut section of amnion. This is the cut edge of amnion. हम ऊपर से देख रहे हैं amniotic cavity के थ्रू. This is the bucopharyngeal membrane. This is primitive streak. bucopharyngeal membrane यहाँ पे है, इसका मतलब ये cranial end हो गया. This is the cranial end and this is caudal end. The primitive streak appears on caudal end on epiblastic cell layer. At cranial end of primitive streak, cells proliferate. This is the cranial end of the primitive streak, this region. Cell proliferate here
to form primitive node. Now this is cloacal membrane, means caudal end. अगेन ये डायग्राम में हम कट सेक्शन, एमनियोटिक कैविटी से कट सेक्शन देख रहे हैं, एपिब्लास्टिक लेयर को देख रहे हैं, हाइपोब्लास्टिक लेयर को देख नहीं रहे हैं, यॉर्क सैक को भी नहीं देख रहे हैं। अगर हम कंसिडर करें एम्ब्रियो को एज अ स्फेयर, पूरा स्फेयर के अंदर डिवीजन है एक बाइलेमिनर डिस्क से, ठीक है। ऊपर की तरफ एमनियोटिक कैविटी है, नीचे की तरफ यॉर्क सैक कैविटी है। अगर हम स्फेयर को कट करते हैं कैविटी के थ्रू तो हमें सिर्फ ऊपर की एपिब्लास्टिक लेयर दिख रही है, वही हम डायग्राम में देख रहे हैं, जस्ट एपिब्लास्टिक लेयर, जहाँ पे हमें बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन दिख रही है क्रेनियल एंड पे, क्लोइकल मेम्ब्रेन दिख रही है कॉडल एंड पे, और कॉडल एंड पे ही हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक मिलेगी एपिब्लास्टिक सेल लेयर के अंदर। और टिप जो होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक की, वहाँ पे सेल, एपिब्लास्टिक सेल प्रोलिफरेट करेंगे और फॉर्म करेंगे प्रिमिटिव नोड। अभी ये सब कैसे हो रहा है, बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है और स्ट्रीक और ग्रूव है, और ग्रूव जैसा लाइन जैसा जो हमें एपिब्लास्टिक सेल लेयर पे दिख रहा है, सेल्स जो हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन के लिए। एपिब्लास्टिक सेल जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को सिक्रीट करेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले रीजन के अंदर, और फाइब्रोब्लास्ट FGF8 that is secreted by cells of primitive streak। तो क्या फंक्शन करेगा FGF8? कैसे दो लेयर कन्वर्ट हो जाएंगी 3 लेयर्स के अंदर? बेसिकली जो न्यू रूल है, जो दो कॉन्सेप्ट हैं जो लेयर फॉर्मेशन में, पुराना वाला कहता है कि एपिब्लास्ट फॉर्म करेगा एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्म करेगा एंडोडर्म। बट न्यू रूल जो है, न्यू जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एपिब्लास्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज ओनली सोर्स ऑफ 3 germ layers, है ना। एपिब्लास्ट फॉर्म all three layers, only cells which get migrated from the epiblastic cell form 3 germ layers, that is ecto, endo and mesoderm। now कैसे बनेगा? हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक मिला, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल सिक्रीट करेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। दिस फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 डाउन रेगुलेट करेगा ई कैडेरिन एडेसिव मॉलिक्यूल्स है, सेल टू सेल बाइंड करके रखता है। जब इसको डाउन रेगुलेट करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा ई कैडेरिन, ई कैडेरिन को डिक्रीज हो गया ई कैडेरिन, तो एपिब्लास्टिक प्रिमिटिव स्ट्रीक के आसपास में जो एपिब्लास्टिक सेल हैं वहाँ पे सेल मूवमेंट कंट्रोल कर पाएगा ई कैडेरिन डिक्रीज हो गया, सेल टू सेल अटैचमेंट खत्म हो गया और सेल मूव करेंगे। एक तो ये काम किया। नेक्स्ट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 क्या करेगा? सेकेंड, इट कंट्रोल्स regulation of another gene, that is brachyury T का एक्सप्रेशन, brachyury T का एक्सप्रेशन। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 सिक्रेटेड बाय प्रिमिटिव स्ट्रीक डाउन रेगुलेट किया ई कैडेरिन को,
एंड अप रेगुलेट करेगा ब्रैकीयूरी टी के एक्सप्रेशन को। ये कंट्रोल क्या करता है? इट कंट्रोल सेल स्पेसिफिकेशन। इस जीन की वजह से जो एपीब्लास्टिक सेल माइग्रेट होके प्रिमिटिव पिट के थ्रू नीचे की तरफ जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे मीजोडर्म के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये प्रोसेस? सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रिप। ठीक है, इस डायग्राम में देखते हैं सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट, ये सब एपीब्लास्टिक सेल्स हैं यहाँ पे, इधर ये सब माइग्रेशन हो रही है। सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट नाउ कैसे होगा? सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट, एपीब्लास्टिक जो सेल्स हैं, ये अगर हम ये यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये बाइलेयर जर्म डिस्क को हमने ऊपर से देखा, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है यहाँ पे और ये पिट है। उसके बाद में जब हम प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेक्शन से एक कट सेक्शन लेते हैं, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से जो एपीब्लास्टिक सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दी प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये सेल यहाँ, ये सेल ऐसे प्रिमिटिव एपीब्लास्टिक सेल माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और बिकॉज डाउन रेगुलेट हो गया ई गैडरिन एंड अप रेगुलेशन हुआ ब्रैकीयूरी टी के एक्सप्रेशन का, तो ऑन अराइवल ऑन दी स्ट्रीक रीजन, मतलब जैसे ही सेल्स जो हैं वो ये हमारी प्रिमिटिव पिट, ये स्ट्रीक इस तरीके से, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। तो ये जितना भी ये एपीब्लास्टिक रीजन है, सब सेल माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक रेगुलेट कर रहे हैं FGF8 को, जिसकी वजह से जितने भी सेल माइग्रेट हो रहे हैं वो नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लास्क शेप सेल्स के अंदर, शेप चेंज हो जाएगी, फ्लास्क शेप हो जाएगी इनकी। ठीक है, सेल बिकम फ्लास्क शेप एंड दे गेट डिटैच फ्रॉम द एपीब्लास्ट एंड दे गेट स्लिप बीनीथ इट। बीनीथ में क्या है? हाइपोब्लास्ट। अभी तक सिर्फ दो ही लेयर्स हैं ना हमारे पास, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्टिक सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक के फॉर्मेशन के बाद में बिकॉज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 सिक्रेट कर रहा है वो, उसकी वजह से जो सेल हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक। सेल माइग्रेट हो रहे हैं, ई कैडेरिन की वजह से सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है और सेल का जो शेप चेंज हो रहा है वो ब्रैकीयूरी जीन की वजह से शेप चेंज हो जाएगा, नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल चेंज हो जाएंगे फ्लास्क शेप के अंदर, और ये नीचे हाइपोब्लास्ट की तरफ आएंगे। ये सेल है, अब ये सेल माइग्रेट हुए और ये सेल गिरे, ये आ रहे हैं, हाइपोब्लास्ट है ये एपीब्लास्ट है, यहाँ पे आ गए और इन्होंने बनाया मीजोडर्म सेल रिप्लेस करेंगे, है ना। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ये सेल आएंगे फ्लावर शेप में जाएंगे, तो दिस इज इन्वेजिनेशन, दिस इज इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स। सेल माइग्रेशन हुआ, सेल इन्वेजिनेट हुए। वंस द सेल गेट इन्वेजिनेटेड, सम सेल्स क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे हाइपोब्लास्ट को एंड दे क्रिएट एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ठीक है, सेल माइग्रेट होंगे, माइग्रेट होके डिस्प्लेस करेंगे। अभी ये हमारे पास यहाँ पे ये सब सेल्स हैं, ये हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक का रीजन है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक हो गई। तो ये जो सेल यहाँ से सेल जो माइग्रेट कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये हमारे पास एपीब्लास्ट है,
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हाइपोब्लास्ट है। इन दोनों के बीच में एपीब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। ये सेल माइग्रेट हो रहे हैं और ये सेल्स क्या माइग्रेट होके डिस्प्लेस कर देंगे हाइपोब्लास्टिक सेल्स को और फॉर्म करेंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म जब पूरा हाइपोब्लास्ट रिप्लेस हो जाएगा तो एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में जो सेल्स आएंगे, अब ये एंडोडर्म फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंडोडर्म फॉर्मेशन हो गया, एपीब्लास्ट आ गई हमारे पास। अभी भी सेल क्या है, फिर से माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो सेल अब इन दोनों लेयर के बीच में आएंगे, दीज फॉर्म मीजोडर्म। और जो रिमेनिंग सेल एपीब्लास्ट में रह जाएंगे, दैट फॉर्म्स एक्टोडर्म। Thus, epiblast through the process of the gastrulation is the only source for 3 germ layers. Now, formation of notochord. Development of notochord. Notochord क्या है? Notochord, it is a flexible rod-shaped स्ट्रक्चर और बॉडी फाउंड इन एम्ब्रियो ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब में मिलेगा। सर्व एज अ बेसिस फॉर द एक्सियल स्केलेटन। डेवलपमेंट ऑफ द नोटोकॉर्ड, क्या क्या प्रोसेस होंगे? प्री नोटोकॉर्डल प्रोसेस, नोटोकॉर्डल कैनाल बनेगी, न्यूरेंट्रिक कैनाल बनेंगे एंड डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होगा। नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आता है। सबसे पहले हमारे पास आएगा नोटोकॉर्डल। जो प्री नोटोकॉर्डल सेल्स जो हैं प्रिमिटिव नोड से इन्वेजिनेट करेंगे। प्रिमिटिव नोड थी हमारे पास, ये प्रिमिटिव नोड है। प्रिमिटिव नोड से सेल इन्वेजिनेट करेंगे। जैसे 3 जर्म लेयर्स बन रही थी उसी टाइम सेल इन्वेजिनेट करेंगे और जो इनिशियल सेल जो इन्वेजिनेट करेंगे वो फॉर्म करेंगे प्री नोटोकॉर्डल। उन सेल्स को हम कहेंगे प्री नोटोकॉर्डल सेल्स और वो इन्वेजिनेट करेंगे थ्रू द प्रिमिटिव नोड और मूव करेंगे क्रेनियली, क्रेनियल एंड की तरफ मूव करेंगे एंड दे फॉर्म प्री कॉर्डल प्लेट। अब प्री कॉर्डल प्लेट क्या है? प्री कॉर्डल प्लेट इट इज फॉर्म बाय प्री नोटोकॉर्डल सेल्स between tip of the notochord and oropharyngeal membrane। ठीक है, देन जब प्री कॉर्डल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, देन